Type number 2, eigenvalues. Eigenvalues are repeated, यानी कि here 2 eigenvalues are repeated. How to find eigenvalue, eigenvector? So here find eigenvalue and eigenvector for matrix A is equal to 6 minus 2 2 minus 1 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 2 minus 1 3. Also find diagonal matrix D and normalized model matrix P, normalized model matrix P, and linear transformation okay, and linear transformation. Write type of मैट्रिक्स. तो एक ही एग्जाम्पल में पूरा कवर कर दिया. देखो आपको इधर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, डायगोनल मैट्रिक्स निकालना है एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स. तो पहला काम करते, वी नो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वी नो characteristic equation for 3×3 order matrix lambda cube s1 lambda square s2 lambda minus determinant of A 0. Here s1 is equal to sum of diagonal एलिमेंट, यानी कि हियर तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट a11 a22 a33 a116 a223 a333 total 12. s2 sum of minor of diagonal element, sum of minor of diagonal element, minor is subdeterminant obtained by neglecting row and column. So this is minor of
A11, that is neglect R1 C1. तो remaining element right here, तो 3 minus 1 3. Here minor of A22 neglect R2 C2. Second row second column neglect 6 2 2 3. Now minor of A33 neglect R3 C3. Third row third column, तो 6 2 6 minus 2 3. Addition 9 minus 1 8, 18 minus 4 14, 18 minus 4 14. Total is 36. Okay. Now value of determinant 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3. The value of determinant is 32. Okay, value of determinant is 32. Required characteristic equation lambda cube S1 lambda square S2 lambda minus determinant of A0. Here S1 is 12, S2 is 36 minus 32 0. Factorize by synthetic division या by कैल्सी. ओके, अब ऐसी वैल्यू लैम्बडा की डालो कि लेफ़्ट साइड आंसर 0 आना चाहिए. ओके, 1 डाला 0 नहीं आता है, -1 पुट करो, लैम्बडा के जगह पर -1 डालो, आंसर 0 नहीं आ रहा है. अगर वैल्यू मैंने 2 डाला तो 2 क्यूब इज़ 8, ये 48 72 32 टर्म कैंसल होगा. इसका मतलब फर्स्ट रूट इज 2. राइट दिस नंबर बिलो द लाइन, टेक क्रॉस प्रोडक्ट 2 into 1, vertical addition, again cross product, then 16 and 32. This addition is 0. Hence lambda is equal to 2 lambda square minus 10 lambda plus 16 0. ऐसे दो नंबर निकालो कि उसका प्रोडक्ट 16 एडिशन -10 आता है, तो 8 into 2 -2 -8 10, but product is 16. Hence eigen values are 2 2 8. Eigen values are after factorization 2 2 8. So here eigen values are lambda 1 2, lambda 2 2 and lambda 3 8. Find eigen value, eigen vector for each value of lambda. There is one vector. Now case 1 for lambda is equal to 8. पहला काम करो, नॉट रिपीट केस पहले सॉल्व करो, नॉट रिपीट केस पहले सॉल्व करो. फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वेक्टर, मैट्रिक्स A minus lambda I into x equal to 0. A minus 8i into x 0. Subtract 8 from diagonal element, 6 minus 8 minus 2 2 minus 2 3 minus 8 minus 1 2 minus 1 3 minus 8. Okay, here x1 x2 x3
is equal to 0 0 0 is equal to 0 0 0. Next, here x1 x2 x3, here 0 0 0, 6 minus 2 minus 8 minus 2 minus 2 2, minus 2 minus 5 minus 1, 2 minus 1 minus 5. Okay, अब here all rows are not identical है. Okay, all rows are not identical. All rows are not identical. Hence, solve any two equation using Cramer's rule. Cramer's rule. Here rank r is equal to 2. जब हम दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो रैंक इज 2. ओके, नाउ सिलेक्ट फ्रॉम दिस एनी टू. सपोज वी आर टेकन दिस टू, मल्टीपल बाय x1 x2 x3 एंड इक्वल टू 0. तो फर्स्ट इक्वेशन -2x1 -2x2 and 2x3 is equal to 0. minus 2x1 minus 5x2 minus x3 0, x1 divided by determinant minus x2 by determinant, x3 by determinant. Okay, now below x1 right here coefficient of x2 x3, तो -2 2 -5 -1 -2 2 -5 -1. यहाँ क्या लिखोगे? कोएफिशिएंट ऑफ x1 x3 बट ए परमानेंट माइनस. x1 कोएफिशिएंट -2, x3 कोएफिशिएंट 2n -1. इधर कोएफिशिएंट ऑफ x1 x2 यानी कि हियर -2 -2 -2 5. Evaluate determinant here +2 +10 12 minus x2 here 2 4 6 x3 here 10 यानी कि this also 6, कॉमन नंबर 6, तो यार x1 2 x2 -1 x3 1. Hence first eigenvector here 2 -1 1 for lambda is equal to 8. Either GM indicate how many independent vectors for lambda equal to 8. n minus r 3 minus 2 यानी कि 1. how many times lambda equal to 1 repeat? तो 1 times. तो here am is 1, gm also 1. तो in this case am is equal to gm. अगर in each case am and gm equal, then given matrix is diagonalizable. अगर हर एक केस में am gm इक्वल है, then you will get diagonal matrix D. Okay, now case 2 for lambda is equal to 2. For lambda is equal to
2. Case second, for lambda is equal to 2, but how many times lambda 2 repeated? So 2 times repeat. Okay, matrix A minus lambda I into x equal to 0, A minus 2i x equal to 0, subtract x1 x2 x3 0 0 0, यानी कि 6 minus 2 minus 2 2 minus 2 3 minus 2 minus 1 and 3 minus 2. यहाँ आता है 4 minus 2 2 minus 2 1 minus 1 2 minus 1 1. Okay, here all eigen values, मतलब eigen values are equal, then we get this situation. ये 2 minus 1 1 है, अगर मैंने यहाँ से -1 कॉमन निकाला तो 2 minus 1 1 रहेगा, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला तो 2 minus 1 1. इसका मतलब all rows are identical, all rows are identical. Okay, hence solve one equation, solve one equation using parameter. अगर गलती से आपने 2 इक्वेशन लिया तो आपका प्रॉब्लम यहाँ आ जाएगा. देखो यहाँ तीनों की वैल्यू 0 0 0 आ जाएगी. वी वांट नॉन जीरो वेक्टर. अगर बाई चांस तुमने 2 आइडेंटिकल इक्वेशन लिया तो ये वैल्यू 0 0 0 आ जाएगा. एंड हेंस हियर ऑल आइडेंटिकल है तो कौन से भी 2 लेकर क्रैमर्स यूज करोगे तो आंसर 0 वेक्टर आ जाएगा. एंड दैट्स व्हाई यू सॉल्व वन इक्वेशन यूजिंग पैरामीटर S and T. Okay, here rank is equal to rank R 1, ताकि 1 इक्वेशन सॉल्व किया तो रैंक 1 है, 2 इक्वेशन सॉल्व किया तो रैंक 2. एक्चुअली यूजिंग इक्विलॉन मेथड फाइंड करना है, बट ये शॉर्टकट मेथड आ गया. वैलिड फॉर दिस एग्जाम्पल ओनली. नाउ सिलेक्ट वन ओनली एग्जाम्पल. तो 4x1 या 4x1 प्लस minus 2x2 plus 2x3 0. Put here x3 equal to t, x2 is equal to s. 4x1 minus 2 x2 is s, 2t 0. 4x1 is equal to 2s minus 2t. x1 is equal to s minus t by 2. Okay, and hence eigenvector also called characteristic vector, latent vector, invariant vector. Here answer x1 s minus t by 2, x2 is s, x3 t. For lambda is equal to 2, but we are putting infinite value of s and t, then you will get infinite vector. But how many vectors, how many, GM का मतलब how many independent vector for lambda is equal to 2. Formula n minus r. N is 3, rank is 1. Here rank is only one equation solve करना है, rank 1 2.
तो यहाँ भी आ गया AM is 2, GM is 2, ओके, GM also 2, AM also 2 in each case। तो यहाँ दो वेक्टर पॉसिबल है। व्हाट इंडिकेट GM? देयर आर टू वेक्टर्स फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2, तो x2 and x3, ओके। नाउ हाउ टू पुट द वैल्यू? एज यू लाइक यू पुट द वैल्यू, बट याद रखो तुम्हें मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, आइगन वेक्टर ऑर्थोगोनल चाहिए, और इसीलिए बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ एस एंड टी नेवर विल गेट प्रोडक्ट इज 0। इसीलिए एक शॉर्टकट मेथड है, ट्रायल एरर मेथड है। यू डिसाइड द वैल्यू ऑफ एस एंड टी फ्रॉम प्रीवियस वेक्टर। देखो ये टेक्निक है ऑर्थोगोनल लाने के लिए एग्जाम्पल को। तो फ्रॉम प्रीवियस वेक्टर लास्ट टू वैल्यू ले लो, -1 and 1, इसीलिए तो हम नॉट रिपीट केस पहले करते हैं, ओके। तो -1 and 1 फ्रॉम प्रीवियस वेक्टर टेक लास्ट टू वैल्यू, ओके। तो फ्रॉम प्रीवियस वेक्टर टेक लास्ट टू वैल्यू, ओके, लास्ट टू वैल्यू, दिस इज इम्पॉर्टेंट। प्रीवियस वेक्टर क्या था? इधर -1 1 एंड शायद 2 था, तो ये वैल्यू हमें लेना है, ओके। तो फ्रॉम प्रीवियस वेक्टर टेक लास्ट टू वैल्यू, और इसीलिए तो पहले केस हम नॉट रिपीट करते हैं। टेक हियर प्रीवियस वेक्टर से -1 1 -1 1, बट दोनों सेम हो जाएगा, यू चेंज एनी वन साइन। अब मैंने ये साइन बदल दिया। अब ये कंसीडर करो S is 1 और T is 1, डाल दो इधर, S1 है T1 है, S is 1 T is 1, तो 1 - 1 0, तो ये आ गया 0। पुट हियर S is -1 T is -1, S is -1 and T is 1, तो -1 -1 -2 डिवाइड बाई 2, तो -1। तो ये मुझे दो वेक्टर्स मिले। अब ट्राई करते वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और नॉट। चेक वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और नॉट। तो x1 डैश x2 0 आना चाहिए। तो यार पहले तीन वेक्टर x1 इज इक्वल टू 2 - 1 1, x2 इज इक्वल टू 0 1 1 एंड x3 इज इक्वल टू -1 -1 1। तो हियर x1 2 - 1 1 एंड x2 इज 0 1 1। अब प्रोडक्ट आ गया 0 - 1 1, आंसर इज 0। x2 ट्रांसपोज x3 यानी कि 0 1 1 एंड -1 -1 1 0, प्रोडक्ट ले लो, -1 + 1 0। x3 डैश x1, तो x3 डैश -1 -1 1 एंड x1 इज 2 - 1 1, यानी कि -2 + 1 + 1, आंसर 0। हेंस ऑल वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, ओके। तो ये केस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपना पहला आंसर फाइनल हो गया। फाइंड आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, फिनिश। अब एक्सटेंशन ऑफ प्रॉब्लम, पहला चेक करो सिमेट्रिक है ऑर्थोगोनल, तो ये दिखाया तो भी चलेगा, नहीं दिखाया तो भी चलेगा, ओके। नाउ नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स, नॉर्मलाइज्ड मॉडल मैट्रिक्स यानी कि जस्ट दिस इज यूनिट वेक्टर,
ओके, तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस। तो सेम वे हियर x1 इज इक्वल टू x1 2 minus 1 1, hence normalized vector x1 is equal to 2 by root 6 minus 1 by root 6 1 by root 6, यानी कि यूनिट वेक्टर x2 is equal to 0 minus 1 1, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर x2 इज इक्वल टू, चेक करता हूँ पहले x2 क्या है। हियर x2 0 1 1 है, x2 0 1 1 0 1 1, देन नॉर्मलाइज वेक्टर 0 1 by root 2 1 by root 2, okay. So this is unit vector of this x2 vector. x3 vector minus 1 1, normalized eigen vector x3 is equal to, okay, x3 is equal to minus 1 by root 3 minus 1 by root 3 and 1 by root 3, okay, because here x is equal to a b c, यानी आइगन वेक्टर x इक्वल टू ए बी सी, देन नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर फॉर्मूला a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो वही तो किया है, ए बी सी, यहाँ क्या किया है, ए बी सी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ये फार्मूला, बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, यानी कि डिनोमिनेटर मतलब मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो दिस इज नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर, ओके। नाउ diagonalized matrix, sorry, here normalized model matrix, okay, normalized model matrix, ये क्या है, डेफिनेशन है, a matrix whose columns are eigenvector, okay. तो नॉर्मलाइज मैट्रिक्स डिनोटेड बाय p, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, ओके। फर्स्ट वेक्टर इज 2 minus 1 1, बट नॉर्मलाइज वेक्टर चाहिए, बट कौन सा वेक्टर चाहिए, नॉर्मलाइज। ये जो नॉर्मलाइज किया कि नहीं, ये नॉर्मलाइज वेक्टर वी रिक्वायर्ड। तो x2 नॉर्मलाइज क्या है, x2 नॉर्मलाइज 0 1 by root 2 1 by root 2, ओके, 0 1 by root 2 1 by root 2, एंड थर्ड डायगोनल यानी कि थर्ड वेक्टर नॉर्मलाइज माइनस 1 by root 3 minus 1 by root 3 1 by root 3, minus 1 by root 3 minus 1 by root 3 1 by root 3, okay. This is model matrix P, normalized model matrix P, hence P inverse is equal to P transpose, because क्या होता है, इन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P इनवर्स इज P ट्रांसपोज। तो ये जो आने वाला दिस वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, अभी हमने पीछे दिखा दिया है, दिस वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, ओके। इसका मतलब
मॉडल मैट्रिक्स आल्सो ऑर्थोगोनल। आने वाला जो नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स है, दिस इज ऑर्थोगोनल, दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। According to definition of orthogonal matrix, in orthogonal matrix A inverse is A transpose या P inverse is P transpose, और इसीलिए P का ट्रांसपोज मतलब ही तुम्हारा P इनवर्स। तो इधर है आपका P, तो फर्स्ट रो राइट इन फर्स्ट कॉलम 2/√6 0 - 1/√3, 2/√6 0 - 1/√3, write down first row in first column, second row -1 1 and -1, okay। तो -1/√6, then 1/√2 and -1/√3। देखो यहाँ का हमने सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में लिखा, और थर्ड रो 1/√6 1/√2 1/√3, 1/√6 1/√2 1/√3, okay। This is P inverse. What is use of P for linear transformation? Now diagonalize matrix, diagonalize matrix, okay। तो या diagonalized matrix D is equal to a matrix, here diagonal element always eigen values। ये आर्टिकल में diagonal values are eigen values, but condition here in each case AM is equal to GM, then matrix is diagonalizable whose diagonal elements are eigenvalues, but which eigenvalue first depend on which vector we have taken in P। तो इधर पहला आइगन वैल्यू जो है डायगोनल एलिमेंट आइगन वैल्यू ऑफ x1, दूसरा आइगन वैल्यू ऑफ x2 और तीसरा आइगन वैल्यू ऑफ x3। आइगन वैल्यू ऑफ x1 इज 2, आइगन वैल्यू ऑफ x2 इज आइगन वैल्यू ऑफ x1 फर्स्ट आइगन वैल्यू 8, then 2, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। वन लाइन आंसर है whose diagonal elements are eigen values, okay। Now linear transformation, here देखो, here all diagonal element positive, all diagonal element positive, then this gives positive definite okay type, this gives positive definite type। अगर ऑल आइगन वैल्यूज निगेटिव है तो निगेटिव डेफिनाइट, एंड अल्टरनेट प्लस माइनस है तो इनडेफिनाइट। उसका रूल लिख कर देंगे, बट फिलहाल तो इधर ऑल आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, देन दिस गिव्स पॉजिटिव डेफिनाइट। एंड नाउ लास्ट लाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक्चुअली इसका मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिलेटेड है, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म वी कैन कन्वर्ट इन सम ऑफ स्क्वायर, ओके। क्वाड्रेटिक फॉर्म वी कैन कन्वर्ट इन सम ऑफ स्क्वायर, बट इंस्टेड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म
मैट्रिक्स से अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो तुम्हारा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू पी वाई, एक्स इज इक्वल टू पी वाई। एक्स का मतलब ओरिजिनल वेरिएबल x1, x2, x3, ओके। एंड नाउ न्यू वेरिएबल y, y1, y2, y3। ये ज़्यादा डिटेल तभी समझेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में एग्जाम्पल लिया तो, बट इधर ओनली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। तो ये आप फॉर्मूला बाय हार्ट करो, x इक्वल टू पी वाई। एक्स इज ओरिजिनल वेरिएबल, y के न्यू वेरिएबल, p का मतलब नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स। नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स इधर है, ओके p। तो ये p मैं यहाँ लिखता हूँ 2/√6, 0, 1/√3, मतलब इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जाएगा ताकि ट्रांसपोज आए। नाउ -1/√6, 1/√2 एंड -1/√3, 1/√6, 1/√2 एंड 1/√3। और इसी तरह से जब प्रोडक्ट लेंगे तो x1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 2/√6 y1, 0y2 -1/√3 y3, x2 इज इक्वल टू -1/√6 y1, 1/√2 y2 एंड -1/√3 y3, x3 इज इक्वल टू 1/√6 y1, 1/√2 y2, 1/√3 y3। दिस इज रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ओल्ड वेरिएबल ट्रांसफॉर्म इन न्यू वेरिएबल। थैंक यू।